What we were saying is that we have a set of algorithms called the randomized algorithms, which are improvement over the deterministic algorithms. आपके पास deterministic algorithms हैं. Deterministic algorithms में अब issue ये आ रहा है कि if the size of n becomes extremely large or humongous, then even deterministic algorithms take a lot of time to solve. So there is a set of problems called for which we can use randomized algorithms. Randomized algorithms use the concept of random number generation, जिससे हम लोग इनपुट को या तो सैंपल की फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं या एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं जिससे हमारी आउटपुट का बिहेवियर चेंज हो जाता है. By changing that behavior, what we achieve is that it takes lesser time to solve the problem. Now there are two types of randomized algorithms that we discussed in the last lecture. वो कौन सी थी? One is Las Vegas and one is Monte Carlo. Las Vegas में क्या था? That it changes the behavior of the output, but the output is always correct. Okay. And in case of Monte Carlo, what happens is that the output may differ. And if we iterate over a number of times, each iteration may produce a little different result. वो रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग उसमें कई बार सैंपलिंग करते हैं, रैंडमली सैंपल ऑफ इनपुट सेलेक्ट करते हैं और वो पास करते हैं. तो क्या हम लोग उसमें जो एरर आ रहा है या जो वेरिएंस आ रही है उसको रिमूव कम कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था दैट इन द लास्ट फेज जो भी इंडिविजुअल आउटपुट्स आ रही हैं हम लोग उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी फंक्शन लगाकर वी कैन गेट अ वन फाइनल. Then we discussed one quicksort algorithm which is known as randomized quicksort algorithm, which is based on Las Vegas randomization. तो वो algorithm हमने किया था. And now we are going to discuss the Monte Carlo randomized algorithm for min cut concept. सबसे पहले min cut क्या होता है? That also I explained it to you in the last lecture, that a min cut is the minimum number of edges that we need to remove so that हमारा एक connected graph becomes two disjoint sets. इसका मैंने एग्जांपल आपको लास्ट लेक्चर में भी दिया था, वो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, यू हैव अ ग्राफ लाइक दिस. So this is an example of a connected graph because we can move from any vertex to any other vertex in the graph. अब अगर मैं इस एज को रिमूव कर देता हूं, दैट मीन्स मैं B to D को यहां से रिमूव कर देता हूं, सिर्फ एक एज को रिमूव करता हूं, देन दिस बिकम्स अ डिसजॉइंट सेट. अगर ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता, तो डिसजॉइंट कैसे हो सकता था? शायद दो एजेस रिमूव करनी पड़ती, B and D and C and E, तो दिस वुड हैव बिकम अ two disjoint sets. So this is the minimum cut algorithm. Minimum cut algorithm is used to select the edge, ठीक है, with minimum weight. अगर उसका weight दिया हुआ है, अगर weight नहीं दिया हुआ है तो weight को लेने की जरूरत नहीं है. And accordingly this the minimum weight edge in the next move is done in a network graph. तो हमें करना क्या है? हमें या तो weight दिया हुआ है तो minimum वेट होना चाहिए जिन एजेस को रिमूव किया है, otherwise the count of edges, that is the minimum edges that we should remove. And what is the output? The output is two disjoint sets. What is the output? The output is two disjoint sets. So let us start with what is given and what we are supposed to achieve. A cut जो हमें अचीव करना है ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ इज ऑब्टेन्ड by dividing the vertex set V. So what is V? V is a set of all vertices that we have. अगर आप एग्जांपल देंगे ग्राफ को which is given on the left side, so what does the set V vertex contain? It contains
7 edges A, B, C, D, E, F, G. So this is given to us, that is a set V of all the vertices in the graph G into 2 sets. अब हमें V को divide करना है into 2 sets. One is called V1 and the other one is called V2. Such that there is no common vertex in between, like A, B, C, and V2 becomes D, E, F, and G. तो हमने V को 2 सेट्स में डिवाइड कर दिया है, V1 एंड V2. ओके, इन दोनों सेट्स में कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है. और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं. डिसजॉइंट का मतलब क्या है, किसी भी वर्टेक्स जो V1 में है, we do not have any edge to any vertex which is part of V2. आप देख सकते हैं कि जब हमने इन 2 एजेस को यहां से रिमूव कर दिया तो A, B एंड C से एक भी एज नहीं है जो D, E, F, G पर जाती है. This is what we are supposed to achieve. And the union of the 2 sets V1 and V2 जो हमने बनाए हैं, that is equal to the original set. I hope this explanation is clear to what is the input, what is the output, and what we are going to achieve. So now let us see what is the algorithm, or what does the algorithm looks like. The algorithm says we are going to repeat step 2 and 4 until only 2 vertices are left. यानी जो हमारा ओरिजिनल सेट है, उस सेट के अंदर सिर्फ 2 एजेस बच जाएंगी, तब तक हमने इस स्टेप को रिपीट करते जाना है. ओके, तो हमने करना क्या है, वी आर सपोज टू पिक एनी एज एट रैंडम. नाउ दिस इज वेयर द रैंडमाइजेशन कम. यहां पर रैंडमाइजेशन आ रही है बिकॉज आप किस एज से स्टार्ट करेंगे, दैट will not be the first edge but a very carefully selected randomized edge with the help of random function. बहुत ज्यादा केयरफुली तो हम नहीं बोल सकते हैं, बट इंटेलिजेंटली वो सिलेक्ट करेगा. कब तक ये काम करना है, जब तक आपके पास सिर्फ 2 वर्टिसेस बच जाती है. ठीक है, वंस वी पिक अप अ एज फ्रॉम U to V, यानी हमने इस एज को सिलेक्ट किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एज को रिमूव करने के लिए U एंड V को मर्ज कर देंगे. मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देता हूं. Let us suppose this is what we are having. I request the students to please focus on this. This is what we are having. This is sub part. मैं इसको पूरा नहीं बोल रहा हूं. And let us suppose that we decide that we are going to remove this edge. We are going to remove this edge, or we have selected this edge. Not remove this edge, but we have selected this edge. So what if we select this edge? ये 2 वर्टिसेस के बीच में आता है B एंड C में. तो अब हम क्या करेंगे, हम B एंड C को मर्ज कर देंगे, यानी B एंड C will become one vertex and A will become one vertex. अब आप ध्यान से देखिए, A to B एक एज थी और A to C एक एज थी, तो now this will become a double edge like this. Okay, and B and C में भी एक एज थी, B to C जा रही थी, तो that will become a self. So अगर मैंने B to C एज को सिलेक्ट किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, B and C को मर्ज करना पड़ेगा. फिर A to B और A to C इस तरह से जा रहा था, तो मैंने उसको मर्ज कर दिया. And in the end what you have to do is you have to remove the loop, self loop. इसको आपने रिमूव कर देना. एंड स्टेप बाय स्टेप वी विल कंटिन्यू. कब तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक आपका जो वर्टिसेस हैं इस मर्जर के बाद, द वर्टिसेस जो हैं वो 2 ना रह जाए. जब 2 रह जाएंगी हम लोग स्टॉप कर देंगे. व्हाई वी विल स्टॉप, व्हेन देयर विल बी ओनली 2 वर्टिसेस लेफ्ट. जस्ट थिंक ओवर इट. Why should we stop when only 2 vertices left? Because हमने V को 2 सेट्स में डिवाइड करना है, एक V1 और एक V2. जब
हम मर्ज करते करते सिर्फ 2 वर्टिसेस में रह जाएंगे, तो वन विल रिप्रेजेंट B1 एंड द अदर वन विल रिप्रेजेंट B2. I hope this thing is also clear to you. तो let us start formally with an example. अब हमने समझ लिया है कि min cut क्या है, हमने ये भी समझ लिया है कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है. अब हम इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन अ गिवन एग्जांपल. So just see here that this is the original ग्राफ गिवन टू अस. तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसके सेट ऑफ जो वर्टिसेस हैं उनको नोट कर लेते हैं. तो लेट अस नोट द सेट ऑफ ओरिजिनल वर्टिसेस. द ओरिजिनल वर्टिसेस वी हैव इज A, B, C, D, E and F. हाउ मेनी एजेस आर देयर, ये भी गिवन है. वन एज इज फ्रॉम A to B. The second edge is from A to D, B to C, and A to B, A to D, B to C, then D to E, then C to F, E to F, and C to E. How many edges are there? There are a total of 7 edges. तो हमारी एल्गोरिथम तब तक चलेगी जब तक आपके सेट ऑफ वर्टिसेस में 2 से ज्यादा एजेस हो. तो टोटल एजेस कितनी है, टोटल वर्टिसेस कितनी है, 6. तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं दैट द टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इज 6 विच इज ग्रेटर देन 2. तो हम लोग आगे बढ़ेंगे. आगे बढ़ना कैसे है, हम इस ग्राफ में से कोई भी 2 रैंडम किसी भी एक एज को ले लेंगे. तो रैंडम फंक्शन ने कौन सी एज सेलेक्ट की, B to D. तो B to D एज कौन सी है, ये वाली. अब हम लोग इसको रिमूव करने की कोशिश करें. तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ. B to D को रिमूव कैसे करना है, बाय मर्ज ऑपरेशन. तो मर्ज ऑपरेशन क्या है, इस तरह से B, D, ये हमारी एक एज बन गई. ऑलरेडी हमारे पास एक एज थी दैट इज A. अब A to B एंड A to D 2 एजेस जाती थी इस तरह से. B to D भी आपस में एक एज जाती थी इस तरह से. ओके. अब यहां से आप ध्यान से देखिए, एक एज B to C जा रही है, एक एज D to E जा रही है. यानी B to C एक एज जा रही है एंड वहीं से B to E जा रही है, एंड देन इन दोनों के बीच में एंड देन F. सो दिस इज हाउ वी रिड्यूस इट. अब हमें करना क्या है, इसमें से सिर्फ जो B to D का सेल्फ लूप है उसको हमने रिमूव कर देना है. ओके. सो हम उसको यहां से रिमूव करते हैं. सो दैट्स इट. सो व्हाट वी हैव अचीव्ड इज, दिस इज द रिडक्शन दैट वी हैव अचीव्ड. हमने कौन सी वर्टेक्स को मर्ज किया है, B and D. तो यहाँ देखिए B and D को रिमूव करके सिर्फ एक ही बना देते हैं, दैट इज B and D. तो अब हमारे पास कितनी वर्टिसेस बच गई हैं, अब हमारे पास सिर्फ 5 वर्टिसेस जो हैं वो बच गई. तो थोड़ा सा आगे चलते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. चेक करते हैं कि क्या यही हमने अचीव किया है. तो ये ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली हमने यही अचीव किया. ओके. सेल्फ भी रिमूव हो गया. तो नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी एजेस वी हैव 5 एजेस विच इज ग्रेटर देन 2. तो हम लोग और काम कर सकते हैं. अब नेक्स्ट रैंडम एज कौन सी सिलेक्ट हुई है, नेक्स्ट रैंडम एज सिलेक्ट हुई है E to F. तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग E to F एज को रिमूव करने की कोशिश करते हैं. तो E to F को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, E and F will become 1 edge. इसके अंदर एज सेल्फ लूप भी लगेगी, हम लोग पहले से ही उसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि बाद में भी रिमूव करना है. नाउ E to C भी एक एज जा रही है, एक C to F भी एक एज जा रही है. तो हम लोग C के साथ डबल एज यहां से लगा देंगे. अब E to BD भी एक एज जो है वो हमारी जा रही थी. मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, E and F को मर्ज किया, ये C पर 2 एजेस जा रहे थे. ओके. अब E से एक एज B to D जा रही थी, तो मैं वो यहाँ पर बना देता हूँ.
let's just draw it again. This is what we are able to achieve. ओके और एक C to BD एक एज जा रही थी और एक A to BD डबल एज जा रही थी. दिस इज व्हाट वी शुड अचीव. नाउ लेट अस सी कि क्या यही हमने अचीव किया है या रिजल्ट इज स्लाइटली डिफरेंट. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव अचीव. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिजल्ट दिया है नीचे हमारा, उसके साथ मैच कर रहा है. अब उसके बाद हमारे पास टोटल एजेस कितनी बची. हमारे पास टोटल एजेस बची 4, यानी अभी भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं. तो नेक्स्ट एज कौन सी इन्होंने पिक की है रैंडमली, दैट इज ए ऑफ बी डी. यहाँ पर आप देख सकते हैं ए एंड बी डी को आपस में मर्ज कर एक बनाना है. सो दिस इज इट. ए और बी डी को आपस में मर्ज करना है. तो मैं राइट साइड पर बना रहा हूँ. सो ए एंड बी डी दो अलग थे, अब ये बन गए ए बी एंड डी. तो ये बन गया. इनके बीच में सेल्फ लूप थी, हाँ थी, वो दिखानी है आपने और बाद में उसको रिमूव कर देना. अब देखिए ए टू बी डी में सेल्फ लूप थी, वो तो हमने रिमूव कर दिया. अब ए से तो कोई एज कहीं और नहीं जा रही थी, लेकिन बी डी से एज सी को जा रही थी और बी डी से एज एक ई कॉमा एफ को जा रही थी और सी और एफ के बीच में डबल एज थी. यहाँ पर भी एक सेल्फ लूप बनना था, डबल सेल्फ लूप बनना था, लेकिन क्योंकि हमने बाद में उसको रिमूव करना ही है तो मैंने पहले ही रिमूव कर दिया. लेकिन आप लोग जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आप उसका डबल लगाकर ही सॉल्व करें. तो लेट अस सी क्या हमने सही सॉल्व किया है. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो एग्जैक्टली यही है हमारा. लेकिन हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्टिसेस वी हैव नाउ. वी हैव 3 वर्टिसेस. अभी भी हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं, यानी अभी भी हम लोग रिमूवल कर सकते हैं. तो इसके बाद उन्होंने एक और एज को रिमूव करना है, तो उन्होंने CEF को लिया. कौन सी एज को रिमूव करना है, जो C to EF जाती है. तो C to EF को अब हम रिमूव कर देखते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. ABD इस तरह था तो ये इस तरह ही रहेगा. दूसरा बन गया CE एंड F. इनके बीच में एजेस थी, वो सेल्फ लूप बन सकती है, लेकिन सेल्फ लूप को बाद में रिमूव करना ही है, तो मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ. अब ABD टू CEF कितनी एजेस थी आपस में, 2 एजेस. तो अब हम देखते हैं क्या क्या यही है आंसर, फाइनल आंसर. इसको फाइनल आंसर मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको फाइनल आंसर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब हम इसके आगे नहीं जाएंगे, बिकॉज द vertex on the left is representing the V1 set and the vertex on the CEF is representing V2, and we just need to remove the edges between them. यानी हमारे ओरिजिनल ग्राफ में ABD से CEF अगर कोई 2 एजेस जा रही हैं तो हमने उनको रिमूव करना है. तो क्या चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल ग्राफ में ABD एंड CEF कैसे दिखाई देता है. तो लेट्स गो. आवर सॉल्यूशन इज complete. Now let's go back to our original graph. ABD on the left hand side becomes one disjoint set and CEF becomes the second disjoint set, and we need to remove these 2 edges. This is the solution to min cut. That is the minimum number of edges that should be removed. These are the minimum number of edges that should be removed from the graph to make 2 disjoint sets. There is no property like that the 2 disjoint sets should be equal. ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है. आपने सिर्फ एक मिनिमम एज रिमूव करनी है जिससे हम 2 डिसजॉइंट सेट्स बना सकते हैं. So this is what we have achieved with the help of a randomized algorithm. इसमें हमने randomly
एजेस को सेलेक्ट किया, उन एजेस को रिमूव किया बाय मर्जिंग द वर्टिसेस and continued with our solution till we are left with two vertices, because one vertex represents v1 and the second represents the v2. So what is the solution to min cut problem in case the edges have weights assigned to them? अगर एजेस को वेट असाइन है तो हम लोग उन एजेस को मिन कट का पार्ट बोलते हैं, या उन एजेस को रिमूव करना है जिनके वेट का सम मिनिमम होना चाहिए। अगर मैं एक ग्राफ में से 3 एजेस को रिमूव करता हूं, लेकिन उन 3 एजेस का वेट कितना है, 2 + 5 + 6 इज इक्वल टू 30, और उसी ग्राफ में से मैं एक सॉल्यूशन निकालता हूं कि 2 एजेस रिमूव करने से भी काम हो जाएगा, लेकिन उनका वेट कितना है, 7 and 8 which is equals to 15, then I will go for this solution because मैं वेट के हिसाब से चल रहा हूं। लेकिन अगर वेट गिवन नहीं है, then we count the number of edges। अगर हम मान लेते हैं कि वेट गिवन नहीं है एजेस का, then there is the minimum is counted by the number of edges। इस केस में 3 edges रिमूव होनी है, इस केस में 2 रिमूव होनी है, तो then I will go for this solution। One more thing students, we have already discussed in our previous examples what is the max flow within a graph। हमने एक max flow algorithm की थी। Now whatever is the value of the max flow, let us suppose 15, और उसके लिए 3 पाथ्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, 3 पाथ सेलेक्ट किए, सोर्स टू सिंक, सोर्स टू सिंक के 3 पाथ्स हमने सेलेक्ट किए, और उन 3 पाथ्स का फ्लो क्या है, 7, 5 and 3। तो हमने मैक्स फ्लो निकाल लिया। मैक्स फ्लो ऑफ द ग्राफ इज 15 and the first path has a flow of 7, second is 5 and the next one is 3। अब इस पाथ में जिस भी एज का जो टोटल वेट है वो 7 है, हम लोग उस एज को सिलेक्ट करेंगे। इसमें उस एज को सिलेक्ट करेंगे जिसका जो वेट था 5 था, और लास्ट में उस एज को सिलेक्ट करेंगे जिसका वेट 3 था। That means if we remove these 3 edges, then that will represent the min cut for creating 2 disjoint sets। In case we are assigned weights। घबराने वाली बात नहीं है, मैं इसका आपको एग्जांपल दूंगा so that there is no confusion in your mind। So let us see what is the min cut when the weight is given। The smallest total weight of the edges which is removed would disconnect the source from the sink। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन व्हाट इज द मिन कट एल्गोरिथम यूजिंग द रैंडमाइज्ड। लेकिन वेट से कैसे मिन कट कैलकुलेट होता है इन अ सिंपल एल्गोरिथम, मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ। हमें जाना कहाँ है, हमें सोर्स टू सिंक जाना है, और हमें मैक्सिमम फ्लो कैलकुलेट करना है कि कितना हो सकता है। तो सबसे पहले आप एक पाथ उठा लीजिए, ये और ये। सो दिस इज वन पाथ। अब इस पाथ में व्हाट इज द टोटल फ्लो, टोटल फ्लो इज 12, और किस नोड का किस एज का सॉरी वेट इज 12, दिस एज। तो हम लोग सबसे पहले तो इस एज को कट कर सकते हैं, इस एज को कट भी कर सकते हैं, इसका फ्लो भी खत्म हो गया, पूरा का पूरा यूज कर लिया। अब ये 16 था, तो अगर इसमें से 12 यूज कर लिया है तो 4 बचा, और इसमें से हमें कितना बचा, इसमें से हमें 8 बचा।
क्या कोई और पाथ भी है? सॉरी, तो ले लेते हैं एक पाथ। लेट अस सपोज द सेकंड पाथ इज, यहां से हम लोग नीचे आते हैं, फिर यहां जाते हैं और फिर यहां जाते हैं। ठीक है, तो एक ये पाथ ले लेते हैं। तो इस पाथ को अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं तो मिनिमम क्या है, जो मिनिमम है वो 4 हो सकता है। तो हम लोग 4 को फिर डिडक्ट कर सकते हैं, हम लोग 4 को डिडक्ट कर सकते हैं हर। इसी तरह से हम लोग फ्लो कैलकुलेट करते रहेंगे हर पाथ के लिए, तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास सोर्स टू सिंक का पाथ अवेलेबल है। जब हमारे पास सोर्स टू सिंक का पाथ अवेलेबल नहीं होगा, देन जो भी हमने पाथ सिलेक्ट किए हैं उसमें से मिनिमम एज को रिमूव कर देंगे। तो यहां से मैं आपको दिखा देता हूं। देयर आर 3 paths दैट वी हैव कैलकुलेटेड। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए। वन पाथ जो हमने अभी लिया था, 0 से 1, 1 से 3, 1 से 5। हमने दूसरा पाथ भी कैलकुलेट कर लिया था, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5। और तीसरा पाथ क्या है, 0 to 2, 2 to 4, 3 and 5, that means 7। मैक्सिमम फ्लो कितना है इसका, 12 plus 4, 16 plus 7, that is 23। 23 is our max flow, and this is also the min cut। दिस इज ऑल्सो द min cut, दैट मीन्स हमें जो एजेस मिनिमम रिमूव करनी पड़ेंगी उसका वेट है 23। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर वापस चलते हैं। ये हमारा ओरिजिनल पाथ था। तो हमारा ओरिजिनल पाथ है 1 to 3, 0 to 1, 1 to 3 एंड 3 to 5, जिसका फ्लो 12 था। तो इसमें रिमूव कौन होगा, 12। नेक्स्ट में आप किसी को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट में आप किसको ले सकते हैं, नेक्स्ट में आप जो दूसरा पाथ था उसमें से जिसका पाथ 4 था आप उसको ले सकते हैं। और लास्ट में आप किसको ले सकते हैं, लास्ट में आप उस नोड को ले सकते हैं जिसका पाथ 7 था। अगर मैं इन 3 नोड्स को रिमूव कर देता हूं और बाकी के ग्राफ को ड्रॉ करता हूं, मैं एक बार ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं आपको सिंप्लिसिटी के लिए। 0 to 1, 2, there is an edge here and there is an edge here। ठीक है, देन 3, ऊपर वाली एज रिमूव हो गई है, देन वी हैव ओनली वन एज फ्रॉम हेयर टू हेयर। फिर यहाँ पर एक एज है 2, 4, and these 2 edges have been removed and the final edge we have is this। तो ओरिजिनल ग्राफ में से मैंने 3 एजेस रिमूव कर दी हैं। आप देख सकते हैं कि there exists no path, there exists no path from 0 to 6। So this is how we have, this is also a directed। लेकिन जो हमने सॉल्यूशन निकाला है that is for without weights and for the number of edges in the undirected graph। So with this you can find an algorithm for this also। So we have come to the end of our lecture today, and I would like to discuss or highlight the points that we have done in the today's lecture। First of all, we defined what is you can say our algorithm, डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम। सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया, व्हाट इज अ डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम। देन वी डिफाइंड व्हेन द n becomes humongous or very large, then it becomes difficult to apply the deterministic algorithm। Then what we do is we choose another set of algorithms called the random algorithms। What is the randomized algorithms or random algorithms? These are based upon some random bits which are generated by the algorithm, and इनका यूनियन कर दिया जाता है आपकी इनपुट के साथ, and what we eventually get is we apply the algorithm to it then, and finally what we get is output। डिटर्मिनिस्टिक में क्या था, your output dependent upon input and the algorithm only।
whereas output in case of random algorithm depends upon the random bits. Then what we did was ki random algorithms can be of two types. One is called the Las Vegas and the second one was the Monte Carlo. Las Vegas में output हमेशा same रहती है, लेकिन Monte Carlo में there is some kind of a very minor error that can be generated. And how do we get the final output in case of Monte Carlo? We get the final output by, if we have output 1, output 2 and output 3, then we apply some kind of probability function to it, and then what we get is the final output. After discussing all these things, what we have done is two algorithms, one for Monte Carlo and the other one for Las Vegas. So we did quick sort randomized algorithm for the Las Vegas, and now we have done the min cut algorithm. In the min cut, what we did is the minimum number of edges that should be removed to get two disjoint sets. You must have seen that it works really fast. The answer may not be absolutely correct, but it still provides you an answer which is very close. Now you may say that what the error can come in a graph, but in an real life example, a graph may consist of thousands of edges. तो उसका min cut बनाना इतना आसान नहीं होता है. तो there may be a small variation in the optimal answer and the answer that you derive. So ये जो error की बात कर रहे हैं, error कहाँ से हमें compute हो रहा है? Optimal error. हमें पहले पता होना चाहिए कि what is the optimal error and what is the optimal solution, and what is the solution that we gain by using the randomized algorithm, and the difference between these two is the error. And we have also discussed how we can you can say shrink this error or minimize this error, that is by use of some probability function. प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे? जैसा मैंने बोला कि एक एरर आ रहा है, एक वेरिएंस आ रही है ऑप्टिमल सॉल्यूशन में और आपके रैंडम सॉल्यूशन, तो हम लोग क्या करेंगे? आइटरेट करेंगे. आइटरेट मतलब रिपीट करेंगे सेम प्रोसेस को लेट्स से 5 to 10 टाइम्स, और फिर हर एक का एरर थोड़ा सा डिफरेंट होगा. किसी में एरर आएगा, किसी में एरर नहीं आएगा. फिर हम लोग उसके ऊपर एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालते हैं, एंड देन वी डिसाइड व्हाट इज अवर फाइनल output, and the final output is obviously going to have a very little error in it. So thank you very much for attending this lecture. So with this we come to the end of what are randomized algorithms. Now we are left with only one topic, and that is heuristics, and how we use heuristics to find solutions to the different problems that we will discuss at 2 o'clock during your lab session. Thank you very much.